اور خداوند نے کہا کہ اگر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا تو تو مرے گا، اپنی زندگی کو پاک رکھیں گے تو اگر تو یا تیری اولاد اور کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، شیطان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں گے، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگے گی اور میری پیروی نہیں کرے گی، وہ اپنی بیویوں کے پیچھے لگا رہا، ان کی مانتا رہا۔ آپ غیر قوموں جیسے کام مت کرو، جو آپ کو خداوند کہے، جو بائبل کہتی ہے آپ وہ کام کرو، وہ نہیں کرتے، وہ بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ خداوند نے شیطان کو سسپینس میں ڈال دیا کہ ایوب جیسا راست باز دنیا میں نہیں۔ ہاللیلویہ، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم سونو روبن۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ ہم نے خداوند کو بھروسہ دلانا ہے، کہ خداوند کو ہمارے اوپر بھروسہ ہو، ہماری زندگی کے اوپر ہم پہ خداوند کا بھروسہ ہو۔ تو آج بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو، ہماری روحانی زندگی کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں، ہماری اسپرچل لائف کس طرح گروتھ میں آئے گی، ہماری فزیکل لائف کس طرح برکت کو حاصل کرے گی۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ دنیا میں دو ایسے انسان ہیں۔ پہلا انسان ایسا ہے کہ جس کے اوپر خداوند کا بھروسہ ہے، وہ خداوند کو ناراض نہیں کرتا، اور دوسرا انسان ایسا ہے کہ وہ خداوند کا بھروسہ توڑتا ہے، وہ خداوند کو ناراض کرتا ہے۔ آج ہم ان دو انسانوں کے بارے میں، دو آدمیوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دوسرے انسان کے بارے میں سیکھیں گے کہ دوسرا انسان جس نے خداوند کا بھروسہ توڑا، خداوند کو ناراض کیا ہے، جس نے خداوند کو ناراض کیا ہے، وہ انسان کون ہے، کیسا ہے؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں سے یہ آدمی سلیمان بادشاہ ہے، داؤد بادشاہ کا بیٹا سلیمان بادشاہ۔ خداوند نے اس کو بہت حکمت دی ہوئی تھی، یہ خداوند کا عظیم بندہ تھا۔ اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کے 9 باب کی 4 آیت میں خداوند سلیمان بادشاہ سے کہتا ہے، اب رہا تو سو اگر تو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستے سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکارے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے، اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ جی میرے پیارے عزیزو، بائبل ہمیں کہتی ہے کہ خداوند دوسری بار سلیمان بادشاہ پر ظاہر ہوا۔ خداوند کو پتا تھا کہ یہ انسان سلیمان یہ اپنی راستے میں قائم نہیں ہے، یہ آگے جا کر یہ مجھے دھوکہ دے گا۔ خداوند نے اس لیے اس پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے کہا کہ اگر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا، میرے آئین پر لگا رہے گا، راستے سے چلے گا، تو میں تجھے سر بلند کروں گا، جس طرح میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا، اسی طرح میں تجھے بلند کروں گا۔ اگر تو یا تیری اولاد غیر معبودوں کے پیچھے بھاگے گی اور میری پیروی نہیں کرے گی یا میرے حکموں پر عمل نہیں کرے گی، تو مرے گا، تو ہلاک ہوگا، تو مصیبتوں میں پڑے گا۔ ہم آگے اور پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ پہلا سلاطین اس کے 11ویں باب میں پڑھیں گے، جہاں صاف صاف لکھا ہے کہ خداوند کو سلیمان نے دھوکہ دے دیا، جو خداوند نے اس کو کہا تھا کہ تو غیر معبودوں کے پیچھے مت بھاگو۔ اور اس 11ویں باب کے اندر سلیمان بادشاہ نے خداوند کو دھوکہ دیا ہے، اس نے خداوند کی باتوں کو بھلا دیا جو خداوند نے اس سے کہا تھا۔ اور وہ بائبل کہتی ہے، پڑھیں گے پہلا سلاطین اس کے 11ویں باب میں، اس کی دوسری آیت میں، بلکہ پہلی آیت میں، اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ
बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर मबूदों की तरफ माइल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का था। जी मेरे अजीजों, यहाँ पे साफ साफ बाइबल कहती है कि सुलेमान बादशाह ने खुदावंद को धोखा दिया। खुदावंद ने दूसरी बार उस पर जाहिर होकर कहा था कि अगर तू गैर मबूदों के पीछे जाएगा या मेरी पैरवी नहीं करेगा तो मैं तुझे हलाक करूंगा और तू मुसीबतों में पड़ेगा। इसी बात की 5वीं आयत में हम पढ़ेंगे, क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी इस्तारात और अमूनियों के नफरती मिल्कोम की पैरवी करने लगा, और सुलेमान ने खुदावंद की आगे बदी की और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसे उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मुआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के नफरती मोलक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हुजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजराती थी। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, क्योंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे अयाम में ये नहीं करूंगा, बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। बाइबल कहती है कि सुलेमान खुदावंद के आगे अपनी रास्ते को पूरा ना कर पाए। वो अपनी बीवियों के पीछे लगा रहा, उनकी मानता रहा। उसने अपनी बीवियों को खुश किया और उसकी बीवियां वो गैर मबूदों को मानने वाली थी, वो अजनबी थी, वो अजनबियों को मानने वाली थी, वो गैर मबूदों को मानती थी। और उन्होंने सुलेमान बादशाह का दिल उन मबूदों की तरफ फेर दिया और वो उनकी पैरवी करने लगा। बाइबल कहती है वो खुदावंद को भूल गया, वो खुदावंद के पीछे चलना भूल गया और अपनी बीवियों की मानी, जैसा कि खुदावंद ने जब उसे दूसरी दफा जाहिर हुआ उसके आगे और खुदावंद ने कहा था कि तू गैर मबूदों के पीछे ना जाना, तू उनकी पैरवी ना करना। उसने वही काम किया और उसने खुदावंद को नाराज किया, उसने खुदावंद का भरोसा तोड़ा और वो कामिल ना हो सका और वो मर गया, वो हलाक हुआ। आज बहुत से लोग हैं जो अपने खादम की बात नहीं सुनते। उनके पास्टर उनको अगर कुछ कहते हैं वो करते नहीं। वो अगर कलाम के बारे में समझाते हैं कि आप गुनाह ना करो, कलाम ये कहता है कि आप बुरे काम ना करो, आप गैर कौमों जैसे काम मत करो, जो आपको खुदावंद कहे, जो बाइबल कहती है आप वो काम करो, वो नहीं करते, वो बात को अनसुनी कर देते हैं, वो खादम की बात नहीं मानते और वो मुश्किलों में और परेशानियों में गिरते हैं। वो खुदावंद को नाराज करते हैं और कभी भी अपने खादम की बात नहीं सुनते। और हम एक और इंसान के बारे में आज जानेंगे जिसने खुदावंद को ये यकीन दिलाया और खुदावंद का भरोसा उस पर रहा। आज उस आदमी के बारे में हम सीखेंगे कि वो आदमी कौन है, वो कैसा है और वो कैसा काम करता था। बाइबल मुकद्दस में से वो आदमी खुदावंद का बंदा अय्यूब है, खुदावंद का बंदा रास्तबाज अय्यूब। बाइबल कहती है कि उसके ऊपर बिना पूछे बिना बताए उसके ऊपर आजमाइश आई। बाइबल कहती है अय्यूब की किताब में जब खुदावंद के हुजूर में खुदावंद के बेटे जाहिर हो रहे थे, उसके पास आ रहे थे, तो उनमें से शैतान भी आया और खुदावंद ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है। शैतान ने कहा कि मैं जमीन पर से घूमता हुआ इधर उधर से आता हूं। तो खुदावंद ने शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की कि उस जैसा रास्तबाज पूरी दुनिया में उस जमाने में नहीं है। शैतान ने कहा कि अगर तू अपना हाथ अय्यूब पर से हटा दे तो मैं उसका वो हाल करूंगा, तेरा बंदा अय्यूब तुझे लान तान करेगा, वो तुझे गलत कहेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदावंद को अपने बंदा अय्यूब पर यकीन था। बाइबल कहती है अगर हम गौर से बाइबल को पढ़ते हैं तो रास्तबाज आसानी तरीके से नहीं बना जाता।
खुदावन ने ऐसे ही शैतान को नहीं कह दिया कि उस जैसा रास्तबाज धरती पे नहीं है, इस जमीन के ऊपर नहीं है, बल्कि जब अय्यूब रास्तबाज बना तो उसके ऊपर बहुत सी मुसीबतें और परेशानियां आई, वो फिर ही तो रास्तबाज बना। फिर ही तो खुदावन ने शैतान को एकदम प्रूफ के साथ कहा, एकदम जोर से कहा। खुदावन ने शैतान को सस्पेंस में डाल दिया कि अय्यूब जैसा रास्तबाज दुनिया में नहीं। खुदावन ने कहा कि अगर तू उसे आजमाना चाहता है, अगर उसे तू देखना चाहता है कि वो मुझे लान तान करता है या नहीं, तो जा, मैं अपना हाथ उसके ऊपर से हटाता हूं और जो कुछ तूने उसके साथ करना है कर, लेकिन तू उसकी जान को नुकसान ना देना। जब शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया, उसकी लाइफ को उसने बर्बाद कर दिया, अय्यूब की, उसके बच्चों को खत्म कर दिया, उसकी दौलत, उसका माल, उसके जानवर, सब कुछ उसने तबाह कर दिया। और थोड़े अरसे के बाद शैतान ने उसको एक ऐसी दर्दनाक बीमारी दी जिसकी इंतहा फोड़े, जख्म, इस तरह की कुछ वो बीमारी थी। और उन जख्मों से बाइबल कहती है कि उसकी चमड़ी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, काली हो चुकी थी, और उसे इतनी दर्द होती थी, इतनी मुश्किल होती थी, वो खुदावंद के हुजूर दुआएं करता, रो रो कर दुआएं करता। जब रात पड़ती तो इतनी उसको दर्द होती। वो खुदावंद को फिर भी कह रहा है कि खुदावंद तू मेरे साथ है। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसकी बीवी उसे कहना शुरू हो गई कि कहां रहा तेरा खुदावंद, कहां गया वो तेरा खुदा जो तेरे साथ था, अब तो वो तेरे साथ नजर नहीं आता, अब वो तुझे इस बीमारी से क्यों नहीं निकाल रहा, वो तुझे इस प्रॉब्लम से, इस आजमाइश से क्यों नहीं निकाल रहा। उसने कहा कि क्या हम खुदावंद से सिर्फ खुशी को ही ले सकते हैं, क्या हम दुख नहीं ले सकते। बाइबल कहती है कि अय्यूब अपनी मुश्किलों के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर, अपनी बीमारी के अंदर अड़ा रहा और खड़ा रहा और अपने फेथ को दिखाया और ये साबित किया कि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मुझे रिहा करेगा, खुदावंद मुझे शिफा बख्शेगा, खुदावंद मुझे फिर से सर बुलंद करेगा। उसने यही ठाना। जब खुदावंद ने उसे इस सिचुएशन में देखा, उसकी आजमाइश को जब पूरा होते हुए देखा, खुदावंद ने ये जब खुदावंद ने ये जाना कि अय्यूब मुझे धोखा नहीं दे रहा, वो मेरे सारे हुक्मों पर अमल कर रहा है और मुझे गलत नहीं कह रहा, तो खुदावंद ने उसे सर बुलंद करने का ठाना। आइए खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, अय्यूब उसके 42वें बाब में, उसकी 12वीं आयत में। यूं खुदावंद ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई। तो जी मेरे प्यारे अजीजों, आपने देखा है कि अय्यूब ने अपनी रास्तबाजी को खुदावंद के आगे दिखाया। उसने ये साबित किया कि खुदावंद मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं कभी भी फिरूंगा नहीं, मैं तेरे आइन पर, तेरे हुक्मों पर अमल करूंगा। उसने किया और खुदावंद ने उसे वक्त पर सर बुलंद किया। खुदावंद ने उसे फिर खड़ा किया और पहले की निस्बत उसको ज्यादा बरकत बख्शी। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं और जो अपने खादम की, अपने पास्टर की बात को मानते हैं, जो उनके मेंटर उनको समझाते हैं, जो उनके पास्टर उनको समझाते हैं, वो वैसा ही काम करते हैं और खुदावंद उनको सर बुलंद करता है और खुदावंद उनको बुलंदियों तक लेके जाता है और उनके दुश्मन उनको देखते हैं खुदावंद की बरकत को देखकर। अगर आज आप ये ठान लेंगे, अगर आज आप ये फैसला करेंगे कि हम खुदावंद को धोखा नहीं देंगे, हम खुदावंद का काम करेंगे, हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, हम रास्ते से चलेंगे, हम वफादारी के साथ चलेंगे, अपने खादम के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी जिंदगी को पाक रखेंगे और कभी भी गुनाह नहीं करेंगे, शैतान को अपने पांव के नीचे रखेंगे, तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आप अपनी फिजिकल लाइफ में बढ़ते ही नजर आएंगे। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देता जाएगा और आपने ये ठानना है कि हमने कभी भी खुदावंद को धोखा नहीं देना, जिस तरह सुलेमान बादशाह ने धोखा दिया। आपको रास्तबाज बनना है, आपको अपना वादा निभाना है, आपको अपनी बुलाहट पर चलना है जो खुदावंद ने कहा है आपसे। आपने वो काम करना है जो खुदावंद ने आपसे कहा है। आपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। आपने अपनी ख्वाहिशों को, आपने दुनिया के कामों को अपनी जिंदगी में से तर्क करना है। तब ही आप सरबुलंद होंगे, तब ही आप बरकत पाएंगे। मेरा ये फेथ है कि आज के कलाम से आपको जरूर बरकत मिली है और मेरी दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल द फेथफुल टीम को सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook लाइक पेज है द फेथफुल टीम के नाम से, उसको भी जाके आप फॉलो करें और हमारा Instagram अकाउंट है उसको भी जाकर आप जल्दी से फॉलो करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो वहां पर पहुंचे आपके पास और आप देखें और बरकत को रिसीव करें।